I welcome you all to this new session of KMC Alpha Connect 2021. This session is very different from all our past conversations. It's something more than just the academics. Today we have an opportunity to listen to someone who has not only made our college proud, but also shown us different dimensions on how one can convert his or her passion into profession. We have someone from whom mountains are not especially on holidays, but it is a second home. We would like to welcome Nitish Kumar Singh, who is from KMC class of 2019. Nitish hails from Gorakhpur, Uttar Pradesh. He's a mountaineer, social activist, and an adventure filmmaker. Nitish climbs mountains not just for the fun and adrenaline rush, but for social causes. Before talking more about him, I would love to invite Seema ma'am, the staff coordinator of KMC L9 Network, to officially start the session and enlighten us to her views. Over to you, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you very much for joining us. Good evening, everybody. Thank you. Yeah. Those who have been regularly attending these speaker sessions, designed and organized by this network, must have understood by now how and why it is important to celebrate our alumni achievers. I would like to share with you that at KMC, we had a long cherished dream to engage and involve our alumni to benefit their current juniors through their wealth of experience and skill sets. We always believe that our alumni are our true brand ambassadors. Turbocharging alumni engagements not only allows our alumni to provide ready help to the institution in different ways, that is academically, professionally, and socially, but also empowers them to stay connected with each other and help each other succeed in their fields. We intend to build a strong alumni network, which works as a healthy support system to the institution and contributes to the overall institutional development. We understand that this will be possible only through engagement and a strong value system, which we are ready to build brick by brick. We at the Skirodimal College Alumni Network are looking forward to foster and promote close relations among the young alumni achievers themselves. We are expecting that our very own alumni will play an active role in programs like mentoring students in their areas of expertise. We expect they will also play a significant role in contributing scholarships to deserving students. With these words, I extend a very warm welcome to another young alumnus of KMC, Mr. Nitish Kumar Singh, in the Building Career Path series. I also welcome Mr. Dhuman Kumar, who is the Master of Ceremony today, along with all the participants. With these words, I invite our Principal Madam to kindly welcome Mr. Nitish Kumar Singh, who has joined this Alumni Network platform. Over to you, ma'am. Thank you very much, Dr. Professor Seema Joshi, and my warm welcome and thanks to Mr. Nitish Kumar Singh, our own alumnus from Skirodimal College, and Mr. Dhumal. He has actually organized several earlier talks also, and has been a constant support. As you all know, that Professor Seema Joshi is the staff coordinator on the Alumni Network, and she has led these programs along with the team members, and my congratulations to them for having done so well and having given us hope of moving on from strength to strength and from one level to a higher level. Again, I would like to thank Nitish Kumar Singh, who is here, and from what I understand, he has, in a sense, he built his career as he moves on. It reminds me of that very famous, the big motor ad, Build Your Path. I can imagine him going up on the high peaks, really cracking open and building his path. It's a very, very courageous, brave thing to do,
Besides that, his creativity is clear from the fact that he is a filmmaker and also his social commitment as a social activist. So we have an alumnus with us today who wears many hats. He has many roles rolled up in one. And so we are looking forward to this talk. As you can see, I am outside because there is some infrastructure work going on in the college. So I will keep listening to his talk, which I don't want to miss. And I hope the participants also enjoy it, have a great time. We are looking forward for Alumni Network to be more structured, stronger, wider. And with persons like Nitish Kumar, who is here with us today, and lots of other alumni from different professions, we hope to bring a rich array to our own students and to the Alumni Network. So my thanks to the participants and all the members who are here today. Very warm welcome. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for all the kind words. So now, talking more about the achievements Nitish has. So in 2018, Nitish became the youngest person from Uttar Pradesh state to lead international expedition team towards Mount Neptune. He even raised Beti Bachao, Beti Padhao flag from Mount Everest base camp. He successfully climbed Mount Stock Kangri, which is 20,187 feet in Leh Ladakh. He raised Sarv Shiksha Abhiyan flag from the top of Mount Stock Kangri. He completed his basic rock climbing course with A grade from Swami Vivekanand Mountaineering Institute of Mount Abu, Rajasthan. He even played in nationals in sports climbing, which was held at Indore, Madhya Pradesh, organized by Indian Mountaineering Foundation and represented Uttar Pradesh in October 2018. In 2019, Nitish successfully raised the Indian flag at Marathon Glacier, which is in Arunachal Pradesh at the height of 16,600 feet. He was the president of Society Adventure Club at Kirodimal College in 2018 and 19. Apart from this, he cycled from Gorakhpur to Nepal border, which is 220 kilometers in just 17 hours for the cause climate change. In 2020, he successfully climbed Mount Rudragera in Uttarakhand. He even raised flag for single-use plastic from the mount of Mount Rudragiri. He even talked about social causes like menstrual hygiene from the height of 19,086 feet. He is even a brand ambassador for the program Breaking the Periods Taboo, Soar High in the Sky, which is an organization, which is an initiative by organization Unnati. Talking his achievements in 2021, on 26th January this year, he climbed Mount Kilimanjaro, which is the highest mountain in Africa. He has even climbed mountains like Sritadhar Peak, Friendship Peak, and Kanamo Peak. He's a social ambassador of Indian Development Foundation, and apart from this, he is the founder of Jalsa Foundation, whose goal is to create awareness and empower marginalization. So I would love to welcome Nitish. Thank you so much for joining us today. Thank you, Dhuman. It will be really nice talking to you all. And thank you so much, Vibha ma'am, for this kind word and giving the motivation just to start my journey. And thank you so much, Seema ma'am, for inviting me here. And कहते हैं कि किसी चीज को अगर पाना है तुम्हें तो लाइफ में मुश्किलें तो आती रहती हैं और कुछ ना कुछ छूटता भी है जिंदगी में, क्योंकि आगे बढ़ना है तो छूटेगा और तुम्हें इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है तो छोड़ना कुछ चीजों को पड़ेगा, क्योंकि आगे तुम्हें उससे ज्यादा अचीव करना. सो आई ऑलवेज बिलीव कि सम गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम, एंड मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं, बट टेकिंग दोज एवरी प्रॉब्लम्स एज माई पॉजिटिव थिंग कि कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे को और ज्यादा पोज कर रही हैं कि तुम और ज्यादा स्ट्रांग बनो और आगे बढ़ो. तो इन्हीं सारी चीजों को लेके मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और 2016 की बात है
मैं अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड और अपने बारे में बता दूं। माय फादर वाज इन एन आर्मी और वो 99 में एक्सपायर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो फौजी का भी खून है शरीर में, देश के लिए करना और सारी चीजें। तो 2019 में KMC से पास आउट हूँ और मेरी स्कूलिंग पूरी आर्मी स्कूल से हुई है एंड आर्मी स्कूल के हॉस्टल में भी रहा हूँ मैं। और 4 साल उत्तराखंड रुड़की से पढ़ाई की मैंने और जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। होता क्या था, साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि घर जाने का, क्योंकि आर्मी में ये होता था कि थ्रू आउट ईयर थोड़ा रूल्स वगैरह सब स्ट्रिक्ट होते थे। और रुड़की से गोरखपुर का डिस्टेंस अराउंड 13 आवर्स का होता था और साल में जब आपको 10 दिन 15 दिन का छुट्टी मिलता है और मेरे को मिला, तो ये बात है 8th क्लास की, जब मैंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था और मेरे को कॉलेज में जाना था एग्जाम देने के लिए कि तो मेरा वो सोनल बद्दी है जगह एक हिमाचल प्रदेश में, शिमला से थोड़ा पहले चंडीगढ़ के आगे। तो वहां पे मेरी दीदी रहती हैं, एक रिलेटिव है, तो उनके घर जाना था। तो कुछ नहीं पता था मेरे को, मेरे पास एक छोटा वाला फोन MTS का आता था वही था और एक नंबर था, ना कैमरा ना कुछ नहीं था। तो चंडीगढ़ उतरा, चंडीगढ़ से दूसरी बस पकड़ के नालागढ़ आगे पहुंचा वहां मैं। और वहां पे मैंने पहाड़ उस टाइम मैंने पहली बार देखा था। सच बताऊं तो देख के इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था एंड क्राउड कम था, सिटी की नॉइज ज्यादा नहीं थी। और जहां पे दीदी का घर था उनके जस्ट पीछे ही एक छोटा सा रिज था और जंगल टाइप का ही था और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने ऐसे ही बैठा था, एक दिन हुआ, अगले दिन मैंने एग्जाम देने के बाद मैंने बोला बच्चों से कि एक काम करते हैं, उधर चलते हैं ऊपर। तो उन्होंने बोला नहीं कोई जाता नहीं है और थोड़ा जंगल टाइप का। मैंने बोला चलते हैं। तो मैंने उन्हें लेके शाम को मैं ऊपर पहुंचा एंड जब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर पहुंचा तो वहां से मैंने जो व्यू देखा, मेरे को घर इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, एक स्कूल था, स्कूल की फील्ड इतनी छोटी छोटी दिख रही थी, हवा चल रही थी एंड जो व्यू और जो सुकून मिला ना मुझे वहां से, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइफ में कहते हैं कि सबसे ज्यादा महंगी चीज सुकून है। सब कुछ खरीद सकते हो बट सुकून कभी कोई नहीं खरीद सकता। इवन कितना भी बड़ा आदमी हो, रात को अगर बेड पे सोता होगा तो उसे यही डर होता होगा कि मेरा कंपनी का शेयर डूबे या कुछ हो, तो कहीं ना कहीं टेंस रहता ही होगा। तो वहां देखा मैंने, फिर मेरे को आदत लग गई कि मैंने बोला मेरे को तो इधर ही आना है। तो जब भी मेरे को छुट्टी होती थी, साल में एक बार मैं घर जाने की जगह पे पॉकेट मनी सेव करता था और मैं कहीं ना कहीं शिमला मनाली या कहीं भी निकल जाता था, उत्तराखंड में ऋषिकेश या कहीं भी। तो घर वालों को कैसे पता चलता था, जब मैं वहां पहुंच गया, फेसबुक होता था, फोटो आने के बाद मैं डालता था, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी अगर डालूंगा तो घर वालों को पहले पता चलेगा तो घर वाले कहीं ना कहीं मना करेंगे। तो आने के बाद डालता था। तो घर वालों ने भी कहा ठीक है चलो, 1-2 साल नहीं गया। फिर 11th में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो मुझे गोरखपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो आर्मी स्कूल थोड़ा फीस ज्यादा थी, अराउंड 3000 रुपीज फीस थी उसकी मंथली। तो थोड़ा फैमिली को भी इश्यूज था, तो मैं चीजें समझा। वैसे फैमिली वाले कभी बताते नहीं है, मम्मा और बड़ा भाई भी अगर हो तो कभी बताएंगे नहीं कि प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैं वक्त से पहले थोड़ा मैच्योर हो गया, तो चीजें समझी। मैं गोरखपुर शिफ्ट हुआ, अपने भाई को भी लेके आया एंड मैंने गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे एडमिशन ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th और 12th आपको मार्क्स लाना होता है एंड बाकी सारी चीजें तो यही है कि मार्क्स अच्छा लाओ, यू विल गेट अ गुड कॉलेज। सो 11th और 12th में मैंने पढ़ाई की एंड आई स्कोर्ड 83.2% एंड फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ। एंड इन 2 सालों के बीच में मैंने ट्रैवलिंग छोड़ी नहीं थी। अराउंड 2 साल के अंदर मैंने कहीं ना कहीं तो 7-8 महीने में माउंटेन्स पे ही था और वापस आया, पढ़ाई की, कॉलेज में एडमिशन हुआ। और कॉलेज में एडमिशन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हुई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पंजाबी यूनिवर्सिटी और किरोड़ DU का और नेशनल PG कॉलेज है लखनऊ का, 3 फॉर्म्स भरे थे। कॉलेज में शिफ्ट हुआ एंड वैसे तो मेरे को माउंटेनियरिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही मेरे को पसंद थी, बट लाइफ में कहते हैं कि एक रिजेक्शन ऐसी चीज है दैट विल बिल्ड यू
or just distract you. So कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में तो माहौल एकदम अलग था, बिकॉज दिल्ली और सारी चीजें, तो सब कोई चर्चा करने लगा था कि सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। तो मैंने बोला फोटोग्राफी भी पसंद है, मैंने फैप्स का भी इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि किसका, फिर कॉलेज में आने के बाद थोड़ा ये भी रहता है कि 33% अटेंडेंस मिलेगी, तो वो भी चीज थोड़ी सी थी मेरे अंदर की चलो 33% अटेंडेंस मिल जाएगी, एक सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो पता किया एडवेंचर क्लब करके कॉलेज में था, वर्किंग था बट उसका कुछ अता पता नहीं था। तो मैं गया, पता किया, सर्च किया, तो पता चला उस टाइम पे HOD सर वगैरह थे। तो मैंने बोला सर मेरे को भी ज्वाइन करना है, मैंने भी इंटरव्यू दिया एंड सबसे अच्छा इंटरव्यू दिया था। एंड इंटरव्यू लिया था मेरा, जो मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ही मेरे को निकाल दिया। एंड वो रीजन मेरे को 2 साल बाद उन्होंने बताया और बोला कि नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन। वो कहीं ना कहीं चीजें लग जाती है कि बाकी सबसे मैं एक्सपीरियंस बन रहा हूँ, क्योंकि मैंने माउंटेन्स भी देखे हैं, मैंने ट्रेवल भी किया है, मेरे को नॉलेज भी है सारी चीजों में, मेरे को ही निकाल दिया और बाकी लोगों ने जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया उनको रख लिया। तो फिर उसके बाद मैं HOD सर के पास गया एक बार, तो मेरे को 2-3 बार सुनने को ये हुआ कि हु आर यू, पहले जाओ कुछ करके आओ, तब फिर मैंने बोला ठीक है। फिर एक बार गया तो बात हुई कि स्पॉन्सरशिप वगैरह लाना है, मैंने बोला सर पहले एक बार ज्वाइन हो जाऊं, आई वांट टू बी अ मेंबर एंड सारी चीजें, तो कहा नहीं हो पाया। फिर मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे एक राहुल गुप्ता सर हैं और अपने ही कॉलेज के थे, वो ड्रॉप आउट हैं KMC से ही, और ही इज छत्तीसगढ़ के पहले माउंटेनियर और माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर भी हैं। तो मैं जब भी उधर से 1-2 बार हॉस्टल के साइड से गुजरता था वो मेरे को दिखते थे, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा होता है कि गुस्सा और सारी चीजें, तो मैं थोड़े वैसे नजर से देखता था उनको कि मेरे को क्या था, क्या रीजन था, कम से कम रीजन बता देते कि मेरे को उन्होंने निकाल दिया। तो उन्होंने फिर मेरे से वो एक दिन बुलाया और कहा तुम करते क्या, मैंने बोला सर ये चीजें हैं, और हॉस्टल का वो लोहे वाला गेट है वहीं पे मिले थे। तो मैंने बोला फोटोग्राफर भी हूँ, फोटोज वगैरह भी खींचता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर गूगल किया और मेरे को फिर पता चला माउंट एवरेस्ट के बारे में, और राहुल सर प्लान कर रहे थे माउंट एवरेस्ट के लिए क्लाइंब करने के लिए, और वो चीज थी मेरे अंदर की मेरे को क्यों निकाला। और मेरे को एक चीज लाइफ में उस टाइम लगी थी कि मना आज तक किसी ने कुछ नहीं किया था, मना इस बार इस चीज के लिए किया कि जो चीज मेरे को आती है, जो चीज नहीं आती उसके लिए मना किया होता तो वो चीजें ठीक थी। तो सर्च आउट किया, रिसर्चेस किए, एवरेस्ट के बारे में पता चला सब कुछ। तो राहुल सर जा रहे थे एवरेस्ट, तो मैं करीब करीब उनके पीछे 8-9 महीने लगा रहा, रिसर्चेस किए उनके पीछे कि सर मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी ले चलो, जिद थी। होता है क्या है, एवरेस्ट की कहानी अगर मैं बताऊं तो अगर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो अराउंड 30 लाख रुपीज लग जाते हैं। एंड एवरेस्ट पे पानी अगर पीना है तो आपको अराउंड एक बॉटल की कॉस्ट आएगी 600 रुपीज। एंड एक पराठा भी खाना है तो आपको अराउंड 800 रुपए का एक पराठा होता है। सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि किसी मिडिल क्लास फैमिली को क्लाइंब करना या सारी चीजें। तो बात किया, बहुत पीछे लगा रहा। उन्होंने बोला कि नितिश मैं तुम्हारे ऊपर अगर बेस कैंप पे चलते तो मैं तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए तक क्यों लगाऊं। तो मैंने बोला सर मैं फोटोग्राफर हूँ, आपकी डॉक्यूमेंट्री कर दूंगा सारी चीजें। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें क्यों लगा, वाई एवरेस्ट। सो बात करते करते मनाते मनाते कि सर मेरे को ले चलो। मैंने बोला सर कोई भी काम हो आपको दिल्ली में आप बताना, मैं आपका काम करूंगा। किसी को कुछ पहुंचाना होता था, कुछ पहुंचाना होता। कहते ना कि अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो चीजें देखनी होती है कि कितना तुम कैलिबर है कि तुम झेल सकते हो चीजों को। तो मैंने देखी, किया उनके साथ, फिर बात किया। मैंने बोला उनका भी थोड़ा उस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने बोला सर एक मौका दो लाइफ में, कभी मतलब आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। एंड आज भी याद है एक मौका दिया उन्होंने। उस टाइम मेरे को बोला कि तू कुछ
पैसे का अरेंज कर ले। उस टाइम पे मेरे पास भी नहीं था क्योंकि घर से भी मिनिमम कॉस्ट आती थी। तो मैंने एक चीज की, मेरे पास 2 कैमरास हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बोला एक काम करो, और कहीं ना कहीं होता है कि दोस्त ही लास्ट में काम आते हैं आपके। तो मैंने वो कैमरा, जॉनसन नाम था उसका, मैंने वो कैमरा उसे दे दी। मैंने बोला कि तू मेरे को पैसे दे दे दोनों कैमरास के, मैं आने के बाद तेरे को कैमरा वापस कर दूंगा, मतलब मैं कैमरा भेज दूं। इनफैक्ट कैमरे से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि लाइफ में वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एवरेस्ट फॉर लाइक कि मेरे लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। तो कैमरा मैंने सोल्ड आउट किया। 1-2 दोस्तों से मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में, एंड सर के साथ ही मैंने स्टार्ट किया। एंड मैं एवरेस्ट बेस कैंप में भी था फॉर लाइक अराउंड 45 डेज, एंड आई वाज द टीम मेंबर ऑल्सो। और मैंने रेस्क्यू भी किया 2 इंडियंस का वहां पे, बिकॉज ऊपर क्या होता है कि जब स्नो ब्लाइंडनेस और अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब एक हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो वहां पे आपको हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ता है, लाइक फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, तीनों। माउंटेनियरिंग इसी चीज की। तो वहां से मैंने उन्हें लाइक 8000 मीटर के ऊपर जब कोई क्लाइंब करता है तो उनका दिमाग काम थोड़ा लेस करता है, इस वजह से शेरपा वगैरह होते हैं। सो राहुल सर वाज लाइक कि 2 साल से उनका अनसक्सेस था। 2018 में क्लाइंब किया उन्होंने, उन्हें फ्रोज बाइट हो गया था और स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी। एंड मेरी वॉकी टॉकी पे बात हो रही थी, एंड ही वाज लाइक कि नहीं नितिश, मेरे को ऊपर नहीं आना। उनकी हालत खराब हो रही थी 8000 के ऊपर, एंड ही वाज लाइक कि नहीं नितिश, मेरे को नीचे नहीं आना है और मेरे को यहीं पे रहना है। और मैंने कर लिया चीज। तो होता है कि एक खुशी हो जाती है, तो बट द थिंग इज कि तुम्हें सेफ वापस भी आना है नीचे, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग कि कोई चीज अचीव कर लो, उसके बाद तुम्हें नीचे जिंदा वापस आना है, तभी वो चीजें मान होती है। 2 दिन तक उन्हें ऊपर थे, उन्हें रेस्क्यू किया, वापस आए। एवरेस्ट बेस कैंप वाज लाइक कि जब मेरे साथ कौन है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो तो या तो मोस्टली लोग फोन स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर कहते हैं नहीं जानते। तो एवरेस्ट ने मेरे सारे लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। उस टाइम पे मेरी फैमिली साथ आई, एंड फैमिली ने 2.5 लाख रुपए दिए, एंड फिर मेरा वापस आया मैं। सो मैंने बोला लाइफ में एक पर्पस हो कि अगर मैं माउंटेन क्लाइंब भी कर रहा हूँ तो किस चीज के लिए। फ्लैग हर कोई लगा रहा है। तो बीइंग फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली और लाइक बचपन से पापा नहीं रहे, तो मम्मा को देखा है कि 5 बच्चों को पढ़ाना लिखाना और एक अच्छी एजुकेशन देना, और आज की डेट में एक छोटा सा घर भी है, तो वो चीजें भी तो कहीं ना कहीं मेरे को लगी कि वुमेन्स के लिए करना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए तो मेरी मम्मा ही मोटिवेशन, बिकॉज शी माइट हैव फेल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, वो रोई भी होंगी बट कभी आज तक हमें पता नहीं होने दिया। तो आई चूज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड बेसिक्स की मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो 2018 में एवरेस्ट बेस कैंप से मैंने, उस टाइम पे बैटमैन भी आए थे, अक्षय कुमार सर की मूवी भी आई थी। सो आई थॉट क्यों ना, जब सर ने किया है तो मैं भी एक बार करता हूँ, क्या पता एक पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मैंने जब वो फोटो सोशल मीडिया पे डाली, जब सर्कुलेट हुआ तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, ये क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें। मैंने बोला इट्स नेचुरल, इट्स बेसिक, और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए इन सारी चीजों पे। तो हेट भी आया और सारी चीजें, तो बट आई जस्ट टुक इट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड आगे बढ़ते गया। फिर उसके बाद वापस आया, एंड आई जस्ट टुक द फ्लैग ऑफ फॉर माउंट स्टॉक कांगड़ी फ्रॉम प्रिंसिपल मैम, और कौशिक सर थे उस टाइम पे। 31 अगस्त 2018 को ऑफिशियली फ्लैग ऑफ हुआ था किरोड़ीमल दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंडियन का फ्लैग। एंड ऑन 11th of August 2019 को 18 को मैंने माउंट स्टॉक कांगड़ी, जो कि 20,187 फीट का है, उसे मैंने कॉन्कर किया। एंड दिस इज द लाइक वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ट्रैकेबल पीक है। इसे मैंने क्लाइंब किया, एंड वहां से मैंने सर्व शिक्षा अभियान का फ्लैग रेस किया। एंड मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जो कि माउंट स्टॉक कांगड़ी पे हुई थी।
थोड़ा सा फिल्मी था, बट लाइफ में कुछ चीजें आपको पूरा हिला देती हैं। और उस टाइम मैंने मौत को देखा था सामने। 4 दिन की क्लाइंबिंग के बाद जब बेस कैंप से ऊपर में बढ़ा तो 2 दिन तो बारिश हो रही थी, और मेरे जैसे आदमी के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज पैसे कहाँ से आएंगे। बट ये एक चीज था कि नितिश तू कर लेगा, भरोसा रख खुद पे, क्योंकि मई के बाद कैमरा वगैरह सब बिक गया था। आई जस्ट हैड वन फोन जिसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा था, एंड वो वीडियो मैंने शूट की थी उसी फोन से, और वो वीडियो अपलोड भी की है मैंने यूट्यूब पे। तो वो था, और एक मेरे पास पावर बैंक था, एंड हमें 2 घंटे क्लाइंब करना पड़ता था। सुबह 8 बजे के करीब में BSNL का नेटवर्क आता था एक रिज पे। तो हम फोन करते थे घर वालों को कि हाँ मम्मी जिंदा है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, अब 4 दिन बाद 5 दिन बाद। फिर नीचे आए। बेस कैंप से जब स्टार्ट किया था तो यूजुअली हम सबमिट रात को करते हैं। होता क्या है माउंटेन में, जब दिन में आप जाते हो क्लाइंब करने तो एवलांचेस और बर्फ के खिसकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज धूप की वजह से। तो रात को हम निकलने वाले थे, बट बारिश हो रही थी। तो दूसरा दिन था, मैंने बोला सर एक दिन का तो अराउंड 3000 रुपए कॉस्ट आ रही थी, वहां पर रुकना है, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अमाउंट था। एक नॉमिनल है बट मेरे लिए बहुत ज्यादा था। तो सुबह ऐसे 2 पूरी मैंने खाई थी और बैठा था, मेरे पास एक आलू था और 2 पूरी था। तो आई वाज जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट, एंड मैंने राज सर से पूछा सर क्या करें। तो सर बोले कि चलना है। मैंने बोला सर चलो, वेदर क्लियर है, बट आप माउंटेन्स में कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वेदर कब खराब हो जाए, कुछ नहीं। और 2 बजे के बाद तो विद इन अ मिनट वेदर पूरा खराब हो जाता है। तो हम 10 बजे के करीब में निकले, स्टार्ट किए अपनी जर्नी, एंड अराउंड ABC एडवांस बेस कैंप के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े थे। जैसे स्टीव क्लाइंबिंग थी तो उस टाइम स्नोफॉल होने लगी बहुत ज्यादा तेज थे। तो जो फॉरेनर्स वगैरह भी क्लाइंबर्स गए थे वो वापस नीचे आ गए। तो उन्होंने कहा कि मत जाओ ऊपर, रिस्की है। तो वी हैड थिंक कि मैंने राज सर से बोला कि राज सर क्या करें। तो राज सर ने बोला निकले हो तो करना है। मैंने बोला ठीक है सर, करके आएंगे। और मैम यू वोंट बिलीव कि 4 घंटे की क्लाइंबिंग, विजिबिलिटी वाज लाइक अराउंड 10 मीटर्स की भी विजिबिलिटी नहीं थी। एंड मेरे और राज सर में रस्सी बंधी थी, क्योंकि अगर कोई भी बंदा प्रॉब्लम में फंसता है तो एक बंदा उसको सेव करके, एंकर करके सेव कर सकता है। सो 2 घंटे रिज पे चलने के बाद, एक रिज ऐसे था, इधर भी खाई, कुछ नहीं दिख रहा था। चल रहे थे और बॉडी एग्जॉस्टिव हो चुकी थी। अचानक से एक पॉइंट आता है जहां पे पैर फंसता है मेरा, और मैं सीधे नीचे खाई की तरफ। एंड उस टाइम पे एक मूवी आई थी शिवाय, अभी मतलब आई है, उसमें जो एक सीन है ऐसे करके जाता है, वो सीन में सा सिर्फ 2 सेकंड के लिए हुआ था। एंड अलग ही था कि मैंने उस टाइम पे अच्छा लगा मेरे को, बट कहीं ना कहीं जैसे ही मैं वहां पे स्टक हुआ मेरे आंखों से आंसू निकल गए। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि अगर यहां मरा मैं तो ना मेरी लाश मिलेगी ना मेरा कुछ पता चलेगा, बिकॉज कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं किस पॉइंट पे हूँ, क्या चीज है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो राज सर ने ऊपर होल्ड किया था, मैंने राज सर को बोला सर सेव कर लो मेरे को, और मैं रो रहा था उस टाइम पे। तो राज सर ने बोला नितिश रुक जा, मैं तेरे को सेव कर लूंगा, एंड शांति से रख, बिकॉज पेशेंस और धैर्य की तो ज्यादा जरूरत थी। तो शांत रहा, रो ही रहा था। सर ने फिर अपने आप को आइसेक्स से सेव किया, वहां पे एंकर किया, एंड फिर मेरे को पुल अप किया। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि जैसे ही मैं वहां पे बैठा, पानी पिया, मेरे को यही हो गया था कि मैं अब कहीं ना कहीं खत्म हूं। बट लाइफ में होता है ना कि पॉजिटिव लेना पड़ता है। राज सर ने बोला कि नितिश तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4.5 घंटे तू नीचे जा, या तो 20 मिनट का सबमिट है ऊपर जा। मैंने बोला सर बात तो आपकी सही है, दोनों में रिस्क ज्यादा। 4 घंटे नीचे जाऊंगा पता नहीं बचूंगा कि नहीं, 20 मिनट ऊपर जाऊंगा पता नहीं बचूंगा कि नहीं। बट मैंने बोला सर इतना आए हैं तो 20 मिनट का मैं रिस्क लेना चाहूंगा लाइफ में, कि कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन जो है मेरे को वो चीज नहीं फेस करनी है कि तुमने किया क्या, तुम भी गए, यू आर जस्ट अ फेलियर। सो मैंने बोला सर 20 मिनट का सबमिट है, मैं हर 3 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। सर ने बोला ठीक है। एंड स्नोफॉल वाज अराउंड
1-1.5 फीट का पूरा स्नोफॉल था, और पैर रखते ही पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और कहते हैं ना, मेंटली अगर आप नीचे हो जाता तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे कुछ। तो आगे बढ़ा मैं, और राज सर से बीच बीच में मैं जाता था, रुक जाता था, पानी पीता था। फिर एक टाइम के पास जब सामने समिट दिखा, छोटे छोटे फ्लैग्स दिखे टॉप पे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मैंने बोला सर समिट वो रहा, कर लिया है, यहां से मेरे को जिंदा वापस जाना, मरना नहीं। एंड आई जस्ट टुक ऑफ द फ्लैग, एंड उस वीडियो में मैं, मेरे को खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। मैंने जोर जोर से नारे लगाए हैं कि भारत माता की जय, एंड लाइक वंदे मातरम भी पूरा मैंने गाया। मेरी बॉडी में एक होता ना कि लाइफ में कोई अचीवमेंट, जब एक इंसिडेंट और था, जब मैं बचपन में दौड़ रहा था, 5 मिनट का रेस था, और बॉडी पूरी एग्जॉस्ट होती थी जब स्टेडियम में बाहर से एंटर किया, और जब लोगों की हूटिंग आई कि मतलब क्लैपिंग हो रही थी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो उस टाइम पे वो पॉजिटिव एनर्जी आई। मैंने सर से बोला सर वापस ही जाना है नीचे और जिंदा जाना है, क्योंकि अब लोगों को बताना है कि हाँ मैंने वो चीज कर ली है। नीचे फिर आए, अराउंड 3 बजे तक हम नीचे आए और टेंट में सोया। सर ने बोला कि नितिश, अब नीचे आने के बाद एक चीज और सर ने बताई कि तुम सोना मत तुरंत, अदरवाइज 1 साल पहले एक लड़की की डेथ हो गई थी, वो नीचे समिट आते ही सो गई थी, और मेरे को इतनी ज्यादा मैम नींद आ रही थी क्योंकि बॉडी पूरी एग्जॉस्ट थी। मैंने बोला सर ऐसा बोल दिया तो फिर से डर लगने लगा। मैंने बोला सर एक काम करिए, और मैं ना अभी अगर सो भी गया ना रात को, मेरे को 1-2 बार आके हिला दीजिएगा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। तो रात सर 2 बजे रात को आए मेरे को हिलाने कि नितिश, हाँ सर जिंदा हूँ मैं। एंड वहां से फिर नीचे आया, एंड फिर वापस जिसी कॉलेज में आया मेरे को, तो जिन्होंने निकाला था उन्होंने मेरे को एडवेंचर क्लब का प्रेसिडेंट बनाया। सो कहीं ना कहीं एक चीजें होती है लाइफ में कि जो चीजें अगर आप नेगेटिव ले लो तो यू विल एंड अप, या फिर रिवेंज लोगे। इट्स बेटर कि कभी काउंटर रिप्लाई मत दो किसी को, और हमेशा आगे बढ़ते रहो लाइफ में। तो उसके बाद मेरी जर्नी एकदम अलग रही, प्रॉब्लम्स आती गई, बट मैंने हर एक मोड पे अपने आप को बिल्ड किया कि नहीं, आई वुड जस्ट वांट टू टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, एंड मेरे को आगे बढ़ते रहना। आगे 19 में फिर टाइम मिला मेरे को, आई जस्ट वेंट टू अरुणाचल प्रदेश, वहां मैंने पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ली एंड सारी चीजें। फिर उसके बाद मेरी जर्नी का लाइक कॉलेज का स्टार्टिंग हुआ, एंड एवरेस्ट जब जाना था मेरे को, तो मेरा 4 सेमेस्टर पूरा छूट गया था, एंड वो चीज मेरे घर वालों को नहीं पता थी, अदरवाइज मेरे घर वाले मेरे को कभी अलाउ नहीं करते। तो मैंने पूरा 4 सेमेस्टर छोड़ दिया था, एंड आगे बढ़ा मैं 6 सेमेस्टर पे। मैंने 19 में मेरे पास अराउंड 9 सब्जेक्ट्स थे, 13 डेज में वो क्वालिफाई करना था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट कहते हैं कि खुद पे भरोसा रहे। जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो मेरे को यही था कि पास होऊंगा कि क्या होगा। तो जैसे ही देखा मैंने कि सारे सब्जेक्ट्स में आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम, सो वो खुशी अंदर से आई, क्योंकि 13 दिन के अंदर 9 सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा हेडेक था, एंड घर वालों को भी नहीं पता था, क्योंकि घर वालों होता है कि मम्मा को थोड़ा ये भी डर था कि इतने रिस्क ले रहे हो तुम, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में, क्या चीजें। बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि अपने आप को अगर आगे एक्सप्लोर करना है और आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आगे करना है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती। मेरे को प्रॉब्लम हर एक तरीके से आई, फाइनेंशियली भी बहुत लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट किया। इवन अगर वैसे बोलूं तो मैं यहाँ के डीएम सर से भी मिला, तो मैंने बोला सर आई जस्ट वांट कि मेरी ये फाइल है, आप प्रोसेस करा दीजिए सीएम सर तक। सीएम सर से मिला था, एंड ही वाज जस्ट लाइक कि तुम डीएम से बोल के साइन करवा के फॉरवर्ड करा। एंड डीएम सर वाज लाइक कि पैसा मिलता तो मैं भी चढ़ जाता। मैंने बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो ये तो एक नेगेटिव चीज है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को ऐसे बोल रहे हो, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प जस्ट से कि हम नहीं कर सकते। अब अगर उस लेवल पे
पहुंचने के बाद तो मैम कहीं ना कहीं मेरे को हर एक तरीके से डिमोटिवेशन मिली है, बट पॉजिटिव थिंग ये रही है कि जिन्होंने मेरे को लेट डाउन करने के लिए, जिन्होंने मेरे बारे में उल्टा बोला था, आज वही लोग मेरे लिए एयरपोर्ट पे वेट करते हैं कि नितिश आने वाला है, एंड उन्हीं के लिए चलते हैं। और आज तक जिन्होंने बात नहीं की थी, जिन्होंने मेरे बारे में बोला था, उनके ऑफिसर्स अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो ये बोलते हैं, अरे ये तो मेरे नोन का, मैं इससे फोन पे बात कर रहा था। तो मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के मेरे को फोन लगा देते हैं और बात कर। मेरे को नहीं पता होता क्योंकि मैंने आज तक बात नहीं किया और नाम नहीं पता मेरे को, बट ये चीजें और मेरे को मोटिवेट करती है। कहीं ना कहीं ये भी चीज लगता है कि मेरी मम्मा को तो पता है कि अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या आने वाला है, और उनके पास फोन आता है कि अरे नितिश की फोटो आई है दूसरे नंबर पेज पे अमर उजाला न्यूज़पेपर में। सो मम्मा जब वो चीजें बताती है तो कहीं ना कहीं वो चीजें लगता है कि हाँ मैंने वो चीजें अर्न की है लाइफ में। सो रुद्र गहरा वॉज लाइक कि 2020 में मैंने क्लाइंब किया था, एंड मेरा क्या मानना है कि हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, क्लाइंब कर ही रहे हैं, बट अगर मैं वहां से कोई वॉइस रेज कर रहा हूँ, तो अगर एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों तक जाती है, पीपल गेट मोटिवेटेड एंड वो कनेक्ट भी होते हैं मेरे साथ। एंड हमने वर्क भी किया है सोशली। मैं गोरखपुर में भी वर्क करता हूँ, लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एजुकेशन पे। मेरे पास अभी लॉकडाउन में तो नहीं है, बट उससे पहले मेरे पास अराउंड 80 बच्चे थे जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता था। और ये सारी चीजें मैंने मम्मा से ही सीखी है कि कभी भी एजुकेशन के लिए उन्होंने किसी भी चीज के लिए परेशानी नहीं होने दी है, एंड तो आगे करते रह गया। और आगे यही है कि मुझे लाइफ में अपने आप को और बेटर करना है, ताकि मैं कोई भी मेरी फील्ड में आए तो उसे जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वो चीजें वो ना करें। एंड अभी मैंने रिसेंटली माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया है जनवरी में, और वो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक था, एंड वो फ्लैग ऑफ मुझे अभी सीएम सर ने दिया था। एंड फिर उसके बाद क्षितिधर क्लाइंब करने के लिए हम गए थे अब अप्रैल में ही, एंड वो पीक थोड़ा सा नहीं हो पाया बिकॉज हम अराउंड 16,000 फीट तक पहुंचे थे, एंड मेरे साथ का जो क्लाइंबर था आयुष, वो रिज में गिर गया एंड वो बहुत ज्यादा डर गया था। सो होता क्या है कि सामने जब एकदम मौत आ जाए और सामने वाले, और हमारे लिए लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ अचीविंग, क्योंकि वो बंदा डर गया था, हम 3 लोग थे तो हमें वापस ही आना पड़ा। तो वापस आए, एंड अभी हम जस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर कि मैं अगले महीने माउंट एल्ब्रस क्लाइंब करूं, जो कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है। सो इन्हीं सारी चीजों को लेके मैं अपनी जर्नी आगे और बढ़ाऊंगा, एंड मेरा जस्ट प्लान यही है कि मेरे से जितना हो सके फॉर एनीवन, मैं हमेशा हर किसी के लिए रेडी हूँ। और लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, हर तरीके से आएंगे, फाइनेंशियली, बट यही है कि अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करना है। मेरी लाइफ का एवरेस्ट एक माउंटेन है, बिकॉज अगर वैसे हर किसी को पता है कि एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए एक ही है, बट कहीं ना कहीं एक माउंटेन के आपको तक पहुंचने के लिए आपको 30 to 40 माउंटेन्स क्लाइंब करना पड़ता है। सो अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, तो अगर आप उन्हें फेजेस में डिवाइड कर दें, जैसे कि एक सेमेस्टर अगर आप पढ़ाई को 1-1 महीने में डिवाइड कर दें, तो यू कैन अचीव योर गोल्स। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है लाइफ में, बस यही है कि अपने आप पे भरोसा रखो, बिकॉज सेल्फ बिलीफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा लाइफ में कोई भी चीज नहीं मिल सकती। एंड प्रॉब्लम्स हर एक तरीके से आएंगी, बट उसका सामना करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यही मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है एंड लाइफ में आई जस्ट विश कि बहुत ज्यादा पीक्स और मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करूं, और मेरे से जितना हो सके आई विल जस्ट क्लाइंब की टेकिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और वेदर इट्स लाइक मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया था, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इंटरनेशनल लेवल जाके इन लोगों के लिए क्लाइंब किया है। सो मेरा मानना यही था, मैंने आज तक जब भी मैंने ट्रांसजेंडर को देखा था तो थोड़ा उन लोगों का बिहेवियर हर किसी ने अलग देखा, बट यहाँ पे एक मैम है जो कि महामंडलेश्वर है, किरण नंदगिरी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था।
एंड उन्होंने जब अपनी पूरी जर्नी बताई तो उनकी जर्नी में क्या था कि वो कोलकाता से निकल के लाइक हर एक फेजेस पे उनको हेट ही मिला है, लोगों ने दूसरे नजरिए से देखा एंड सारी चीजें। जब वो सामने बैठी थी, वो अपनी स्टोरी बता रही थी, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड मतलब वो चीजें अंदर से लगी। तो मैंने बोला खून तो हमारा भी लाल है, उनका भी लाल है, तो इतना भेदभाव क्यों है इस दुनिया में? ओमान से अलग क्या होगा? सॉरी विनय, नो नो नो, विनय म्यूट करोगे क्या आप? ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मैंने वही चीजें लेके और मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज को लेके वहां से रेस करूं, एंड इस चीज को मैंने लेके क्लाइंब किया। एंड दिस थिंग वाज लाइक कि बीबीसी से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक जगह ने कवर किया। एंड आई एम रियली, मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब किसी का फीडबैक आता है कि सर आप हटके कर रहे हो एंड बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो लाइफ में आप। और ये सारी चीजें अगर कोई नॉर्मल पर्सन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो चीजें और मोटिवेट करती हैं कि कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आप आगे टॉप तक तो पहुंच गए, बट मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, नॉट ओनली लाइक फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। अगर किसी का एक मैसेज आ जाता है, इट जस्ट फील लाइक कि मेरे को एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मैंने कुछ चीजें अचीव की हैं। और वैसे तो इतना बड़ा नहीं हूँ, बट एक इंसिडेंट और था मेरी लाइफ में। मैं जब कॉलेज स्कूल्स वगैरह में सेशंस वगैरह लेता हूँ, तो एक स्कूल में गया था मैं, यहीं पे गोरखपुर में NER रेलवे स्कूल करके बच्चों का स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है। तो मैं वहां पे लेक्चर दे रहा था एंड खत्म हुआ लेक्चर एंड वापस आया, एंड उसी टाइम में एक अपने KMC के सर ही हैं जो वहां पे टीचर है, ही इज फ्रॉम 97-98 बैच। तो उन्होंने बोला मैं भी नीतीश KMC से ही पास आउट हूँ। तो मैंने बोला अच्छा सर। फिर उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां मेरे पास आई, दे हैव जस्ट कॉपी था उनके पास, एंड उन्होंने बोला सर ऑटोग्राफ। तो ये चीज मेरे लिए लाइफ में पहली बार था। मैंने उनसे बोला कि रिया नाम था उसका और एक का नाम श्रुति था। मैंने बोला ये मेरे लिए तो लाइफ में पहली बार है। मैंने बोला यार मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं, तो रहने दो। उन्होंने बोला सर आपके वर्ड्स ने हमें मोटिवेट किया और हम भी कुछ करना चाहते हैं आपसे मोटिवेट होके। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पहली बार था, तो आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर दैट मोमेंट। बट उस टाइम क्या हुआ कि जो मेरा कैमरा पर्सन जो मेरे साथ था, उसने गाड़ी दूसरे की ली थी, मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती, तो मैं उसके साथ था। तो उसकी मम्मा का फोन आया था, उनको हॉस्पिटल जाना था, एंड आई जस्ट वांटेड कि वो मोमेंट कैप्चर हो। और वो बहुत ज्यादा स्माइल भी कर रहा था। मैं उस टाइम, पिक्चर भी कैप्चर हुई अच्छी। मैंने अच्छे से लिखा, मैंने विथ लव फ्रॉम माउंटेनियर नीतीश सिंह एंड साइन किया। तब तक मैंने देखा साइड से 7-8 लड़कियां और बच्चे क्लास से निकल के आके दे जस्ट लाइक कि सर ऑटोग्राफ। एंड लाइफ का उस टाइम पे वो जो 10 मिनट था वो मेरे को लगा कि हाँ मैंने अब आज जाके लाइफ में कुछ अचीव किया, बिकॉज आई हैव अर्न दिस थिंग। कि वो इतनी ज्यादा खुशी थी अंदर से मेरे को कि उसी टाइम आई वाज लाइक कि साइन किया मैंने। फिर लास्ट में आई वाज लाइक कि मेरे को साइन ही करना, बिकॉज टाइम वाज रनिंग। फिर 10 बच्चों के बाद फिर दूसरे क्लासेस से 10 बच्चे और आ गए। तो पहले तो मैं माउंटेनियर नीतीश सिंह लिख रहा था, फिर लास्ट में आई वाज लाइक कि साइन करते रहो, साइन करते रहो, एंड बच्चों ने मेरे को घेर लिया था पूरा। तो वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा स्पेशल था। एंड उस टाइम से आज तक मेरे को यही लगा कि कभी तुम्हें नीचे नहीं गिरना है, आगे बढ़ते रहो लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। अभी भी आई डोंट हैव एनी स्पॉन्सर्स, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय पॉकेट, बट आई जस्ट हैव अ सेल्फ बिलीव कि हाँ मैं जाऊंगा, मेरे को जाना है, एंड मैं फ्लैग रेस करके पक्का आऊंगा। तो आई हैव अ पॉजिटिव, यही है कि मैं उस चीज को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, तो लाइफ में कहीं ना कहीं आप आगे जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा हर किसी से यही है कि अभी जैसे पेंडेमिक भी है तो हर कोई परेशान है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप इस पेंडेमिक में भी अपने टाइम को ग्रो कर सकते हो। लाइक यू कैन लर्न ऑनलाइन थिंग्स, आप प्लांटिंग कर सकते हो घर में ही, लाइक
रीयूज रिसाइकल जो भी चीजें पड़ी हैं, आप कुछ चीजें नई सीख सकते हो, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो. दे आर लाइक कि यू कैन कनेक्ट, यू कैन टेक फ्यू सेशंस, और ये इस तरीके के सेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्ट होना बच्चों से, और मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरे को भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज मैं भी उतना बड़ा नहीं, और लर्निंग हैज नो एज. सो ये एक छोटी सी मेरी जर्नी थी, और आई होप मैं लाइफ में अब मैम की ब्लेसिंग्स और सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से आगे जरूर पहुंचूंगा. सो दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड धुवन ऑल्सो. काफी इंस्पिरेशनल नितिश. सो नाउ आई वुड ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. जिन्हें भी जो भी क्वेश्चंस पूछने आप चैट पे डाल सकते हो, एंड वी विल टेक वन बाय वन. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है धुवन, चेक करो साउंड. Hello. Hi Vinay. May I ask one question? Yeah. So first of all, Hare Krishna to all of you, and especially Nitish Singh. नीतीश मेरा एक अच्छा दोस्त भी है, और नीतीश ने मेरे साथ काफी सारे ट्रैकिंग किए हैं छत्तीसगढ़ के काफी सारे डेंस फॉरेस्ट में. तो एक कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन है, उसके बाद में बेस्ट ऑफ लक करके मैं म्यूट कर दूंगा. तो सबसे पहले कि नीतीश के साथ मेरी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुई. हेलो, am I audible? Yes. तो नीतीश के साथ मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी काम से गया हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ. उसके बाद वो नीतीश हमारे साथ आया हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रैकिंग के मामले में, एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में. तो जब नीतीश की पहली अचीवमेंट माउंट एवरेस्ट में जो हुई, उसके बाद तंजानिया में जो हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों का भी इनके साथ लगाव हो गया. वो भी मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो करने लगे, और मेरे से मैं ज्यादा कनेक्ट था, तो लोग मुझसे पूछते थे क्या हाल है नीतीश का, कैसे है. तो अच्छा लगता था बताने में कि यार मेरा दोस्त इस लेवल पर पहुंच गया है ना. तो और वो भी ऐसे लोग पूछते थे जैसे बस्तर जैसे लोग. बस्तर को अमूमन लोग नक्सलिज्म के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो बस्तर के लोग भी देखते थे कि इस छत्तीसगढ़ में आगे कोई ऐसा अचीवमेंट, यहाँ के जंगलों को, यहाँ के माउंटेन रेंजेस को वो कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है. नदर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़, सदर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़, जो काफी डेंस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है. तो ऐसे रूरल एरिया के, और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, जो अनटच्ड एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहाँ के लोग है ना, जो कि मैं काफी एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ छत्तीसगढ़ में, और मैंने करीब 90% छत्तीसगढ़ कवर किया है सिर्फ ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग वगैरह एक्टिविटी करके. तो वो लोग एक्टिविटी देखते थे, और बहुत सारे कैंपिंग एक्टिविटी में आते भी थे कुछ लोग. तो ये जानकारी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ का भी बहुत लगाव है ये उत्तर प्रदेश के और दूसरा मेरा, अब ये तो मैं जानकारी बता दिया. दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है, नीतीश साहब से क्वेश्चन है मेरा, कि ये जो माउंट एवरेस्ट था और ये माउंट किलिमंजारो, इन दोनों से डिफरेंट क्या होगा माउंट एवरेस्ट में? हर एक पीक का अलग अलग क्लाइमेटिक चेंज है. जैसे अगर मैं किलिमंजारो की बात करूं, तो किलिमंजारो 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है. लाइक रॉकी फेजेस आते हैं, जंगल है, डेजर्ट है, एंड फिर उसके बाद आपको स्टेबल मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे. सो एक माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए ये जब आप अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करते हो, तो आपकी बॉडी हैबिचुअल है, फिजिकली फिट हो, बिकॉज फॉरेस्ट में गर्मी है, धूप है नॉर्मल. फिर उसके बाद आप जस्ट नॉर्मल डेजर्ट में पहुंचते हो, वहां पे आपको गर्मी लगेगी. तो व्हाट पीपल यूज टू डू कि उन्होंने टी शर्ट में ही ट्रैकिंग कर दी, और सारी चीजें. आपको 17,000-16,000 की हाइट पे अगर आप टी शर्ट पे ट्रैकिंग करोगे, आपको लगेगा कि गर्मी लगती है. बट ये चीजें टोटली अपोजिट होती हैं, आपको बॉडी हार्म हो जाता है. और कहीं ना कहीं जब आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है आगे फ्यूचर मतलब आगे क्लाइंबिंग के लिए. सो एवरेस्ट बेस कैंप तक लाइक हर एक पीक का अलग अलग लाइक टेम्परेचर लेवल जो है, किलिमंजारो पे समिट के टाइम पे आपको -20 तक मिलता है.
एवरेस्ट में आपको अगर जैसे ही आप 2 कैंप के बाद आप स्टार्ट करोगे आगे, तो आपको -डिग्री पड़ना लगता है, और एवरेस्ट की क्लाइंबिंग पूरी स्ट्रेट है। वहां पे अगर आपको 20 किलो वेट उठा के सीधे स्टीप क्लाइंबिंग करनी है, तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है। एंड एवरेस्ट बेस कैंप तक ही बहुत ज्यादा लेंथी है वो चीजें भी, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 दिन आपको लगते हैं उसे पूरा ट्रैक करने को। और किलीमंजारो को अगर आप क्लाइंब करने को, तो किलीमंजारो मैंने 5 डेज में क्लाइंब कर दिया था। सो ये चीजें हैं। और अब एल्ब्रस की बात अगर करें, तो एल्ब्रस में आपको स्नोई फेस ज्यादा मिलेगा, वेदर इट्स तो टोटली यही डिपेंड है कि हर एक माउंटेन पे आपको क्लाइमेटिक चेंजेस मिलते हैं। इट्स जस्ट कि आपको प्रॉपरली एक्लेमेटाइज होना है, आपको प्रॉपरली खुद को कवर करना है, और ये सारी चीजें। ठीक, क्लियर, गॉट इट। हमारे पास और भी काफी क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the challenges in mountain climbing without external supply of oxygen? जो एक तरीका होता है माउंटेनिंग करने का जो ऑक्सीजन सप्लाई के बिना होता है, उसके बारे में आप कुछ बताओ। एक्चुअली होता क्या है कि हर एक माउंटेन पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक सर्टेन हाइट के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, एक्सटर्नल ऑक्सीजन की। अब जैसे कहे कि अराउंड 7.5 या 7,000 मीटर के ऊपर कुछ लोगों की बॉडी ऑक्सीजन की नीड करती है, उनको ब्रीदिंग में इशू होता है, या फिर मैं अगर रनिंग कर रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूअस 200 80-90 किलोमीटर साइकिल कर लूंगा। सो ब्रीदिंग की इश्यूज एक सर्टेन हाइट के ऊपर आपको आती है, अराउंड 7500 के ऊपर या 7,000 मीटर के ऊपर आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आप उससे नीचे क्लाइंब करते हो तो आपको जरूरत नहीं है। बट हाँ, इन इमरजेंसी केस हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रख लेते हैं। कल्पना has asked that sir, एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एक्सपीरियंस? विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप भी कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा फुलिशनेस है, बिकॉज उससे पहले आपको कहीं ना कहीं हाइट गेन, और आपको फिजिकली कम से कम आपको 4-5 महीने तक आपको फिजिकली खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज एवरेस्ट का रूट बहुत ज्यादा लंबा है और चैलेंजिंग भी है। एंड एवरेस्ट बेस कैंप ये भी है कि आपको आपका वेट और लगेज उठाना है। जब आप 15-20 किलो का लगेज अगर आप उठा रहे हो, बैकपैक उठा रहे हो, तो नॉर्मल आप अगर नॉर्मल रोड पे चलोगे तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सारी चीजें। और बल्कि जब आप माउंटेन्स पे जा रहे हो और वो भी एवरेस्ट जैसी जगह पे, तो वो आपको चैलेंजिंग है। तो इट्स बेटर, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप 1-2 ट्रैक्स कर लें इंडिया में, और कम से कम 4-5 महीने तो आप अच्छे से अपनी फिजिकली फिटनेस को ध्यान रखें। वन मोर क्वेश्चन नितिश, किसी को अगर माउंटेनिंग स्टार्ट करनी है तो उसे कौन से वो बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए इनिशियल डेज में? अगर माउंटेनियरिंग स्टार्ट करनी है किसी को अपना, और उसे परस्यू करना है एज 1 मिनट, मेरा लैपटॉप का चार्ज। अगर माउंटेनियरिंग स्टार्ट करनी है तो पहले आई वुड सजेस्ट कि 1-2 ट्रैक्स कर लो, और तुम्हें पता चल जाए कि माउंटेनियरिंग करनी है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में हर एक तरीके के चैलेंजेस आते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली। बिकॉज ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग जैसे होता है कि कुछ ट्रैकर्स को ये लगता है कि आई कैन बी अ माउंटेनियर, बट ट्रैकिंग में आप नॉर्मली जाते हो, शॉर्ट हाइक करके वापस आ जाते हो। और माउंटेनियरिंग इज टोटली डिफरेंट, जहाँ पे आपको बैकपैक आपका खुद उठाना है, क्लाइमेट अगर चेंज होगा आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, और इसमें इट्स लाइक कि विदाउट एक्सपीरियंस। तो करने से पहले आप बेसिक एडवांस कोर्सेज होते हैं, मतलब इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NIM हो गया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिम हो गया आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर में, HMI हो गया आपका दार्जिलिंग में, निमास हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप बेसिक कोर्सेज कर सकते हो। इस बेसिक कोर्सेज में क्या होता है कि 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, मतलब कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेंटली
और उसमें क्लाइंबिंग भी होती है, लाइक रॉक क्लाइंबिंग भी कराते हैं आपको। तो लाइक अराउंड 12,000 फीट पे आपको वो दे देंगे 16 किलो का बैकपैक, एंड अराउंड आपको 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है, एंड इन जस्ट लाइक 60 मिनट। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज। सो 10 किलोमीटर 12,000 की हाइट पे, वो भी 16 किलो बैकपैक, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी दौड़ोगे तो 60 मिनट में, लाइक 1 आवर में 10 किलोमीटर लोग दौड़ते हैं। सो ये चीज है, बेसिक और एडवांस हर किसी को कर लेना चाहिए अगर माउंटेनियरिंग करनी है। कहीं ना कहीं 30 डेज के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स में है वो लोग आपको लाइक वेल एक्सपीरियंस, कुछ एवरेस्टर्स भी होते हैं जो आर्मी की टीम के एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो आपको वेल एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहने को और सीखने को सर की तरफ से, तो एक गाइडेंस ज्यादा जरूरी है अगर आप माउंटेनियरिंग को परस्यू करना चाहते हो। Okay, Devesh. Next question is from Devesh. He's asking about hallucination and temporary mental disturbance जो high altitude पे होता है, वो क्यों होता है? Why does this happen? एक्चुअली होता क्या कि हाई एल्टीट्यूड में जब सिकनेस वगैरह होती है तो ऑक्सीजन का जब प्रेशर कम होता है तो इंसान का दिमाग काम करना थोड़ा सा वो हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे आप कभी भी जाते हो तो लोग ना पानी पीना कम कर देते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो कुछ चीजों को परहेज करना पड़ता है, लाइक दही हो गया, आपका अचार हो गया। लोगों को लगता है कि स्वाद नहीं आ रहा है तो हम अचार खा लेते हैं, तो जब आप अचार खा लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, दही खा लोगे तो आपका गला रुक गया एंड रात को आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों के साथ शिवांगी पाठक जो कि इंडिया की यंगेस्ट पर्सन है, वो भी थी 2018 में, तो उसके साथ एक इंसिडेंट होता था। वो लोग शाम को, मतलब दिन में दही खाते थे और शाम को इंडियन आर्मी की टीम होती थी बेस कैंप में, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते थे। तो हम कहे जब तुम्हें खाना ही क्यों है, बिकॉज इट्स टोटली रिस्की। भाई अगर सांस रुक गई तुम्हारी रात को ही तुम खत्म हो गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो कुछ चीजों को आपको परहेज करना पड़ता, लाइक बेसिक चीजें, और आपको क्लोथिंग अच्छे से करनी होती है, पानी ज्यादा पीना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब लोगों का क्या है कि जैसे ही देखते हैं कि एक हाइट पे आपको दौड़ना नहीं होता, रिदम बनानी पड़ती है, तो एक छोटी से छोटी मेजर्स अगर आप करते हो तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। That's all we have. मैम, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहो या फिर कुछ लास्ट थॉट्स? सीमा मैम? हेलो। Yes, ma'am. आपके पास कोई क्वेश्चंस, कोई लास्ट क्वेश्चन आप करना चाहते हैं? ये अभी है, ये है कोर्सेज वाले क्वेश्चन में कल्पना का क्वेश्चन है। And which is your best memory in college, and tell us something about your friends also. Kashish. There is a question from Kashish. Which is your best memory in college, and tell us something about your friends also. कॉलेज की मेमोरीज तो अगर वैसे मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा अच्छी रही है मेरे साथ कि, और मैंने बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी कमाए हैं कॉलेज में। और अगर पास तो जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है, बट इनसे सिर्फ और सिर्फ मैंने अगले 2 साल में अपने आप को एक्सप्लोर किया। और एक मिनट में तो 2 साल में मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। एंड कहते हैं कि गौरव बंसला करके एक मेरा दोस्त है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा लाइक आपका ही कलीग है, वो बीकॉम ऑनर्स का ही। उसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एंड हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, थोड़ा पैसे के इश्यूज थे, तो मैंने कॉलेज लाइफ में 2 स्टार्टअप्स भी किए थे। एक क्लिकशाला करके था, और एक बदनाम कार्ट करके ऑनलाइन, लाइक उस टाइम पे जब फ्लिपकार्ट आया था तो हमने भी स्टार्ट किया था क्लोथिंग सेल करने का। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मैं कोई कपड़ा खरीद के लाता था तो मैं अपने दोस्तों को मॉडल बना देता था, मैं उन्हें पहनवा देता था। एंड आई जस्ट यूज्ड टू, मैं क्या करता था कि
ये शर्ट तुमको लेनी है, मैं फ्री में शूट आउट कर रहा हूँ, तुम्हारा शूट कर दे रहा हूँ, फोटोज तुम्हें मिल जा रही है, इस शर्ट को तुम पहन लो और इसका पैसा तुम दे देना मेरे को, और ये मैं तुम्हें रीजनेबल रेट पे दे रहा हूँ। एंड फिर उसको मैं ऑनलाइन प्रमोट वगैरह करता था। तो मैंने और बंसला ने, गांधी मार्केट है वहाँ पे शादरा के आगे, तो वहां से हमने गौरव ने ज्वाइन भी किया है सेशन। हाँ हाँ हाँ, एक बार मैं चाहूंगा कि आप माइक ऑफ करो और जिसके साथ थोड़ा कुछ शेयर करो कॉलेज में। हाय गौरव। Just you can continue. yeah. Turn on his camera, I think he must be a student, my student also. He was in third year. Yes मैम, वो भी बीकॉम ऑनर्स में ही था। गौरव अपना कैमरा जो है खोल लीजिए, टर्न ऑन कर लीजिए अपना कैमरा। ये ना डर जाए कि मैम की क्लास में आया था नहीं आया था, तो ऐसा भी होता है। आई गेस मैम गौरव थोड़ा शर्मा रहा है। तो मैम पहचान जाएगी। तो मैं आगे जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और अभी वो शायद आ जाए। तो हम यही करते थे और क्लोथ्स वगैरह पे सेल आउट किया, एंड इसने बहुत ज्यादा, मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ में ये बंदा ऐसा है जिसने मेरे को कभी नहीं छोड़ा, हर एक तरीके से साथ दिया। हमने सोचा था उस टाइम के हमने ट्रैवल एजेंसी भी स्टार्ट की थी उस टाइम पे, ट्रैक दुनिया करके, जिसमें हमारा प्लान था कि हम ट्रैवलर्स को जितने भी लोगों को कॉलेजेस को, अलग अलग कॉलेजेस को अगर जाना है कहीं ट्रिप पे, तो हमने ट्रिप्स वगैरह लेके हम बच्चों को जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया उसे, और इसने डिजाइनिंग फ्रेमिंग की थी कि हर एक कॉलेजेस में हम एक एम्बेसडर बना देंगे, एंड जो एम्बेसडर होगा हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे और बाकी वो ग्रुप्स वगैरह लेके आएंगे। तो यही चीजें हुई और ये हमने किया भी, छत्तीसगढ़ में भी हम लेके गए ट्रैक्स और कराया भी। एंड गौरव बंसला का लाइफ में आज तक उसने माउंटेन्स नहीं देखा था, गाजियाबाद से बाहर नहीं निकला था मैम, और ये सोया था एक दिन, और ट्रेन में जब छत्तीसगढ़ जाता था तो सुबह इसकी आंख खुली तो ट्रेन विदाउट स्टेशन पे एक जगह पे रुकी थी। तो गौरव वाज लाइक कि लगता है ट्रेन पंक्चर हो गई है। मतलब मैं बोलता हूँ सबसे, तो मैंने बोला पहली बार देखी हो ना। तो ये चीजें थी। और फिर उसके बाद क्लिकशाला भी मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे आई वाज लाइक कि फोटोग्राफर्स को हायर करता था मैं और उनको काम देता था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने फाइनेंशियली स्टार्ट अलग अलग जगह से आता था, सेव किया, एंड उसी में मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। और यही माउंटेनियरिंग में मेरे को साथ देते थे। और गौरव आ गया शायद से। हेलो गौरव, लग रहा है मैम आपसे डर रहा है बस। मुझे यही लग रहा है, और मुझे इसका नाम भी याद आ गया है, शायद मुझे एक बार इसने खड़े ऑनर्स में जब आई है। ये कौन सा? हाय गौरव, मास्क उतार दो, कहीं मार्केट में। ओके, वेलकम टू यू आल्सो। सो ही हैज आल्सो बिकम अ माउंटेनियर नाउ। ये भी नहीं मैम, ये तो पहली बार ट्रैक्स पे गया, और इसकी मम्मा जब भी मेरे बारे में सुनती हैं कि नीतीश का फोन आया तो कहती है कि थोड़ा दूर रहो उससे। डरती है ये, आज तक गाजियाबाद से बाहर कहीं नहीं निकला। तो थोड़ा सा है, पहली बार छत्तीसगढ़ में मेरे साथ गया था और बहुत अच्छा भी लगा। तो इस बंदे से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, और लाइफ में इसने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, और कहीं भी इसने मेरे को छोड़ा नहीं है। इसे भी नॉलेज बहुत है, बुक्स रीडिंग और सारी चीजें। तो मैं इससे भी स्पेशली हमेशा शेयर कर सकता था सारी चीजें इजीली, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी मेरे को मोटिवेट करता था। और हमारा भी प्लान था कि लाइफ में हम भी बहुत आगे जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, सारी चीजें।
बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली और घर की भी चीजें आती है तो कुछ ना कुछ छूटता है लाइफ में। बट सपना है, लाइफ में आगे जरूर करेंगे अगर आगे पहुंचेंगे तो। अभी ये है कि स्टेबल होना है, तो इस वजह से वो भी एग्जाम्स में लगा हुआ है एंड मैं भी साइड बेसिस में प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो यही चीजें हैं। और कॉलेज लाइफ में तो मैं एक्चुअली इलेक्शंस में भी था, तो थोड़ा बहुत तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर एक फील्ड का थोड़ा स्वाद लिया है, और हर जगह से मेरे को सीखने को ही मिला है वहां से भी कि लाइफ में कुछ भी हो, रिजेक्शंस हो, हारो जीतो, हार जीत लगी रहती है, बट यही है कि आपको आगे बढ़ना है एंड दिस इज समथिंग कि आप अचीव कर ही लेते हो। I think सभी क्वेश्चंस ले लिए हमने। एंड कल्पना का आई वुड जस्ट सजेस्ट कि होता क्या है कि जब आप कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर 60 सीट्स ही होती है अवेलेबल, तो हर कोई अप्लाई करता है। बट अभी जैसे पिछले 2 साल से पेंडेमिक है, तो वो सीट्स जिनकी थी बुकिंग उनको आगे शेड्यूल कर दिया गया, तो अभी 1-1 साल का वेटिंग है। तो ये चीज है, कुछ अच्छी चीजों के लिए वही बात है कि आपको इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो वही चीज है, मिलेगा जरूर, वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। नितेश मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो आपकी तरफ से? क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ अपनी स्टोरीज में हमें एक्सप्रेस कर दिया। सो इवन आई एम मोटिवेटेड लिसनिंग टू यू, और मुझे भी आपको समझने में जिसको अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में हुई है मुझे। सो यू आर अ रेजिलिएंट पर्सन, you are having a very positive outlook towards life. I think I've been appreciating that. तो ये कंटिन्यू कीजिए आने वाले टाइम में, एंड on behalf of the principal, on behalf of my colleagues and मैम, मौत को करीब देख लिया, अब उससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम देखूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस फोकस्ड वे से आप इसी एरिया में फोकस कीजिए। देयर इज नो नीड टू वंडर हियर एंड देयर, एक ही चीज पे फोकस कीजिए। वो तो पास में मैम वही है ना कि ब्रेड बटर का जुगाड़ करना पड़ता है लाइफ में, तो वो सारी चीजें थी क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास उस टाइम पे। चलो, मैं प्रिंसिपल मैम, अपने कलीग्स और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अपनी बेस्ट विशेस दे रही हूँ आपके नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट मिशन है टू स्केल माउंट एल्ब्रस 15th August. So I'm extending my best wishes to you. Thank you so much, ma'am. And we will invite you once again. Thank you. Thank you so much. And we can formally conclude the session. So I would love to thank Nitish Singh for joining us today, and thank you so much Seema ma'am as well as Principal ma'am for the platform and giving us this opportunity to bring out more and more alumni and plan these kind of conversations. Thank you everyone for joining, and be connected, and we'll be inviting more such alumni in future. And that's all from my side. Thank you so much. Thank you, Nitish. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you. And see you after 15th of August. Sure, ma'am. Bye bye. Thank you. All the best, Nitish.